नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो में। व्हाट इज़ नाउन हम लोग ये पढ़ चुके हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन ऊपर लिखिए, 9 नाउन के टाइप्स नीचे लिखे हैं प्रॉपर से लेकर के नाउन फ्रेज तक। इसमें तो हमने 2 और इंक्लूड करने के बोला है। एक है नाउन फ्रेज, तो इंक्लूड है इससे पहले से। एक है नाउन क्लॉज और एक नाउन जेंडर। ठीक, जेंडर में आप लोग जाने फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन दैट आर यूज्ड टू, प्रॉपर नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेशली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जिसका नाम हम लोग लेते हैं, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल, माई नेम इज रोज, नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, दिस इज माई डॉग ब्रूनो, नेम ऑफ द स्पेसिफिक पेट नेम ओन्ड बाई समवन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन आर दोज नाउन्स दैट रिफर टू अ जेनरिक आइटम, group or place. This means that unlike proper nouns, they are not used to identify specific person, places or objects. Common nouns are not capitalized unless they appear at the beginning of the sentence. जब तक कि ये बिगनिंग में ना आए सेंटेंस में, ये कॉमन नाउन ही कहलाते हैं। जैसे आई बॉट अ पेन येस्टरडे, कॉमन ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू स्कूल, कॉमन प्लेस। ये कॉमन प्लेस है ये सब, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये सब कॉमन प्लेस है। ठीक है, कॉमन नाउन्स। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्लूरल आप जानते हैं, थर्ड ए थर्ड बी। दीज आर words that are used to name a single person, animal, place, word, bird or object, whatever are you are telling. There is a little boy in front of our house, single person. That is my daughter, single person. I found a wounded sparrow in the bush, single bird. A red van has been following us for a long time, single object. Okay, third B, plural nouns. Plural nouns refer to a number of people, places, animals, or things. Nouns are made plural by adding an s or es or ies or ves to the existing root word. Nouns that end with an s remains the same. Some nouns remain the same in both their singular and plural forms, and some others have totally different spelling. Like, I need some apples. Did you find the boxes you were looking for? I bought mangoes from the market. We took photos of some deer on our way. काउंटेबल अनकाउंटेबल यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही है, तो हमने फोर्थ है, फोर्थ भी रख लिया है इसको। आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और measured. Okay, Tom brought 10 packets of Lay's for the trip. Specific number 10. Mom asked me to buy dozen eggs. Specific dozen means 12. I saw an aeroplane around 7 in the morning. Specific means and means 1 or 7. Uncountable noun are those nouns that can not be counted. जो काउंट नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन. दिस कैटेगरी ऑफ नाउन्स इंक्लूड्स बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो. आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू. नॉट स्पेसिफिक, कितना है मुझे नहीं पता. वी आर फेसिंग terrible weather today. Cannot count. सच में वेदर इज वेरी terrible. कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या है? A collective noun is a naming word that is used to denote a group of objects, animals or people. Examples: collective nouns for a group of animals: a pride of lions, a flock of sheep, a swarm of bees, a herd of elephants. Elephants.
Collective nouns for groups of people, a band of musicians, a board of directors, a crew of sailors, a company of actors. Collective nouns for a number of things, objects, a pair of shoes, a chain of mountains, a fleet of ships, sheep नहीं, ships, a bunch of grapes. Concrete noun. What are concrete nouns? A concrete noun refers to objects that are material and can be perceived by the human senses. The book is on the table. The book is concrete. I had a cup of coffee. Coffee is abstract, concrete. Sharon opened the windows. Hardy goes to school by bus. Abstract nouns. What are the abstract nouns? Any entity that cannot be perceived by the five senses of the human body are called an abstract noun. जो नाउन हम लोग के पांचों सेंसों के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं समझा जा सकता, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. दिस लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. It takes a lot of courage to raise your voice and stand up against injustice. You should not minus the freedom you are given. Misuse लिखा है, डबल एस यहाँ पे होगा, misuse, ठीक है. misuse the freedom you are given. चलते हैं 8 नंबर पे. कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच. कंपाउंड नाउन्स आर मेन टाइप्स, ओपन और स्पेस्ड. कंपाउंड नाउन्स और हाइपिनेटेड कंपाउंड नाउन्स, एनक्लोज्ड और सॉलिड. एक एक करके इसमें है. स्पेस और ओपन वाले में क्या क्या आएगा आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ. क्रिकेट बैट हो गया, फास्ट फूड हो गया, फ्लावर शॉप हो गया. हाइफेन कंपाउंड नाउन्स, या जैसे हाइफन में बोला बाई प्रोडक्ट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पासर बाई, ठीक. क्लोज और सॉलिड कंपाउंड नाउन्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक. नाउन प्लस जेरेंड है, नाउन प्लस नाउन है, नाउन प्लस वर्ब है, नाउन प्लस जेरेंड है, नाउन जेरेंड प्लस नाउन है. वॉचिंग, ठीक है. वॉशिंग मशीन. हम आगे बढ़ा रहे हैं. पोजेसिव नाउन क्या है? पोजेसिव नाउन और सिंगुलर और प्लूरल. अ पोजेसिव नाउन इज अ नाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. फॉर इंस्टेंस टू अ क्वेश्चन, जैसे हम लोग को बताते हैं कि राहुल्स फादर, श्रेयास मदर, तो ये सब हम लोग क्या बताते हैं? पोजेसिव सिंगुलर बताते हैं. आप ये पढ़िएगा अपने से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है. सिंगुलर पोजेसिव नाउन इसमें क्या है? आई बोरोड एंजल्स वाइट शूज फॉर द इवेंट. द न्यू मलयालम मूवीज रेटिंग इज प्रिटी हाई. कैन यू फेच मी हैरिस बैग. ये सब क्या है जहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं? ये सिंगुलर पोजेसिव नाउन है. प्लूरल पोजेसिव नाउन सबसे कठिन काम है ये बता पाना. जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि टीचर्स डे आप लोग लिखते हैं, तो पहले तो टीचर डे लिखते हैं. अगर किसी एक शिक्षक का बताना, एक शिक्षक दिवस है, तो टीचर एपोस्ट्रोफी एस डे. अगर सारे शिक्षकों का बताना है कि भाई सारे शिक्षक हैं, आप ठीक है, होता तो शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे होता है, लेकिन बहुत से लोग टीचर्स डे भी लिखते हैं, जो कि TEACHERS एपोस्ट्रोफी डे. जैसे बॉयज़ हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, क्लॉक्स हो गया, ठीक है. नाउन फ्रेज. अब नाउन फ्रेज में क्या है? नाउन फ्रेज में देखिए एक से ज़्यादा है. नाउन राकेश एंड सीता, म्यूजिक एंड डांस, स्कूल एंड ऑफिसेस. नाउन फ्रेज को आप लोग अपने से पढ़ेंगे, ठीक है. नाउन फ्रेजेस कंटेनिंग अ नाउन कंजंक्शन एंड अ नाउन. नाउन कंजंक्शन एंड अ नाउन, जैसे राम एंड सीता, म्यूजिक एंड डांस, स्कूल एंड ऑफिसेस, ठीक. ये हुआ हम लोग का नाउन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे, ठीक है. फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स अ लॉट.